स्टूडेंट, लास्ट टर्न पर हम लोगों ने जो बात की थी वह चर्चा जो है हमारी सिर्फ मलेरियल पैरासाइट तक थी। आज थोड़ा आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए कुछ और डिसीज़ पर बात करते हैं। तो पहली डिसीज़ आप फिगर देख पा रहे हैं, तो हम हेलमिंथीस डिसीज़ पर थोड़ी सी बात करते हैं। हेलमिंथीस डिसीज़ पर हम उन डिसीज़ पर बात करेंगे दोज आर स्प्रेड बाय द वर्म एंड दीज इस डिसीज आर स्प्रेड बाय द वर्म में जो है हमारे पास स्कैरिस है और दूसरा बुचेरेरिया है। तो स्कैरिस से जो डिसीज़ स्प्रेड होंगी उन्हें हम लोग स्कैरियोसिस कहेंगे, और जो डिसीज़ हेलमिंथीस से हो रही हैं उन्हें हम लोग एलिफेंटियासिस कहेंगे या फाइलियरिसिस कहेंगे। तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। नंबर वन इज़ द स्कैरियोसिस। तो स्कैरियोसिस इज एन इन्फेक्शन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन caused by Scaris lumbricoides, a large round worm. The eggs of worms are found in soil contaminated by human feces or in uncooked food contaminated by soil containing eggs of the worm. A person become infected after accidentally swallowing the eggs. The eggs hatch into the larva within the person's intestine. The larva penetrate into intestine wall and reach the lungs through the blood stream. They eventually get back to the throat and swallow it. In the intestine, the larva develop into adult worm. The female adult worm, which can grow to over 30 centimeters in length, lays eggs that are then passed into feces. If soil is polluted with the human or animal feces containing eggs, the cycle begins again. Eggs develop in the soil and become infective after 2-3 weeks, but can remain infective for several months or year. Next is the filariasis that you are seeing in your notebook. Filariasis is the infection with the filarial worms, Buchereria bancrofti, Brugia malai, Brucheria timori. These parasites are transmitted to humans through the bite of an infected mosquito, और ये मॉस्किटो क्यूलेक्स होता है, फीमेल क्यूलेक्स, and develop into adult worm in the lymphatic vessels, causing severe damage and swelling. Lymphedema. Elephantiasis, painful, disfiguring swelling of the legs and genital organ. It is a classic sign of late stage of the disease. So the pathogen transmitted to a healthy person through the bite of the female mosquito vectors. इसके अलावा फिर हमारे पास एक और डिसीज़ है जिसे हम फंगल डिसीज़ के नाम से जानते हैं, और उसका फिगर आप सामने देख रहे हैं, जिसे रिंग वॉर्म कहते हैं। रिंग वॉर्म का मतलब है कि भैया इसमें खुजली होती है, खुजली वाली बीमारी। तो कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म is one of the most infectious disease in man, caused by fungi like Microsporus, Trichophyton and Epidermophyton. Heat and moisture help these fungi to grow, especially in skin folds such as those in the groin or between the toes. इसके सिम्टम्स ये हैं कि dry scaly lesions on various parts of the body such as skin, nails and scalp. These lesions are accompanied by
इंटेंस इचिंग, अर्थात इसमें खुजली होने लगती है, बहुत झुंझलाहट होती रहती है। द पैथोजेंस आर ट्रांसमिटेड टू अ हेल्दी पर्सन थ्रू द बाइट बाय द फीमेल। नो, ये जो ये बीमारी जो है ये फैलती कैसे है, ये समझ लीजिएगा। तो रिंग वर्म आर जनरली एक्वायर्ड फ्रॉम सॉयल आर बाई यूजिंग टॉवेल, क्लॉथ्स आर इवन द कम्ब ऑफ इन्फेक्टेड इंडिविजुअल। जिस व्यक्ति को बीमारी है उसके अगर तौलिया, कंघा या उससे हाथ मिलाएंगे, हैंडशेक करेंगे तो भैया ये डिसीज़ आपको भी हो सकती है। अब इनसे बचें कैसे? तो बचने का एक ही उपाय है, मोदी जी का मंत्र, क्या? स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत। तो मेंटेनेंस ऑफ पर्सनल एंड पब्लिक हाइजीन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ मैनी इन्फेक्शियस डिसीज़। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? कीपिंग द बॉडी क्लीन, कंजप्शन ऑफ क्लीन फूड एंड वाटर, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक हाइजीन, दैट मीन्स प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ एक्सक्रीटा, वेस्ट, पीरियोडिक क्लीनिंग एंड disinfection of water reservoirs, observing standard practices of hygiene in public catering, eradication of vectors and their breeding places by means of avoiding stagnation of water in and around residential area, regular cleaning of coolers, use of mosquito nets, spraying of insecticides in ditches, गड्ढों में पानी में जो है इंसेक्टिसाइड फेंकें, पानी को जमा न होने दें, ड्रेनेज, स्वैम्प एट्सेट्रा पर भी, एंड इंट्रोड्यूसिंग फिशेस like Gombusia in ponds that feed on mosquito larvae. Such precaution can prevent the widespread incidence of vector-borne disease like dengue and chikungunya. अगर भैया पानी नहीं इकट्ठा होगा तो डेंगू, चिकनगुनिया भी नहीं होंगे क्योंकि ये भी मॉस्किटो से ही होते हैं। Vaccination for disease like polio, diphtheria, pneumonia, tetanus. In case of airborne disease such as pneumonia and common cold, in addition to above measure, close contact with the infected person or their belonging should be avoided. Airborne disease जैसे जुकाम है, इन सब चीज़ों से बचने के लिए हमें चाहिए जो भी पर्सन इफ़ेक्टेड है उससे 2 गज की दूरी, मास्क बहुत ज़रूरी। तो जैसे मलेरिया है, फाइलेरिया है, दैट आर ट्रांसमिटेड थ्रू इंसेक्ट वेक्टर, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेजर इज़ टू कंट्रोल और एलिमिनेट द वेक्टर्स एंड देयर ब्रीडिंग प्लेसेस. These can be achieved by avoiding stagnation of water. वही है जो पानी वगैरह बचाना है आपको, पानी गंदा ना होने देना, हाइजीन बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा आजकल तो वैक्सीन आ गई हैं, वैक्सीन का उपयोग कर सकते हैं। द यूज ऑफ वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम हैव इनेबल्ड अस टू कम्प्लीटली eradicate a deadly disease like smallpox, a large number of other infections, disease like polio, diphtheria, pneumonia and tetanus have been controlled to large extent by the use of vaccine. Biotechnology, एक नई टेक्नोलॉजी आ गई है, is at the verge of making available newer and safer vaccine. Discovery of antibiotics and various other drugs has also enabled to effectively treat infectious disease. एंटीबायोटिक और दूसरी जो दवाइयाँ हैं वो अनेक प्रकार की बीमारियों से बचने में हमारी सहायता करती हैं। लेकिन इन सब से ज़रूरी ये है
कि आपकी बॉडी की इम्यूनिटी अच्छी बनी रहे। इम्यूनिटी के लिए समझ लीजिए है क्या, द ओवरऑल एबिलिटी ऑफ द होस्ट बॉडी टू फाइट द डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म कन्फर्ड एज द बाय द इम्यून सिस्टम इज कॉल्ड इम्यूनिटी। मतलब शरीर के अंदर पैथोजन प्रवेश ना करने पाए, प्रवेश कर जाए तो पैथोजन्स को वहीं पर किल कर दिया जाए। इस प्रकार से जो सिस्टम हमारी बॉडी के अंदर बनता है उसे इम्यून सिस्टम कहते हैं। अब इस इम्यून सिस्टम के दो टाइप हैं, इम्यूनिटी ऑफ टू टाइप्स, इनेट इम्यूनिटी एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी का ये है जो बाय बर्न इम्यूनिटी है। इनेट इम्यूनिटी इज अ नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिफेंस with which are an individual is born. It consists of different type of barriers to the entry of foreign agent into our body. These barriers are: number 1, physical barriers. These barriers include skin and mucus coated epithelium of respiratory, gastrointestinal and urinogenital tract. The skin prevent entry of the microbes, while the mucus coated epithelium trap microbes entering the our body. तो ये जो इम्यूनिटी है इसको शरीर के अंदर जाने से जो रोकता है फिजिकल बैरियर वो है स्किन। इसके अलावा आपकी बॉडी में सीबेसियस ग्लैंड है जिससे सीबम निकलता है। सीबम में लैक्टिक एसिड, फैसिड एसिड होता है विच मेंटेन द पीएच ऑफ स्किन बिटवीन 3 to 5। दिस पीएच इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ मोस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। म्यूकस इंट्रैप फॉरेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड सिंक्रोनस मूवमेंट ऑफ सीलिया प्रोपेल माइक्रो ऑर्गेनिज्म आउट ऑफ द बॉडी। नेक्स्ट इज द physiological barrier. The physiological barrier that provide innate immunity comprise temperature, pH, and various soluble factors. Many species are not susceptible to certain disease simply because of their normal body temperature inhibit the growth of pathogens. Chickens, for example, have innate immunity to anthrax because their high body temperature inhibit the growth of bacteria. जो चिकन्स हैं उनका बॉडी टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो एंथ्रैक्स उसके अंदर ज़्यादा जल्दी ग्रो नहीं कर पाता है। इसके अलावा आपकी बॉडी के अंदर गैस्ट्रिक जूस निकलता है जिसमें HCl है, कोई पैथोजेंस गया तो HCl उसे किल कर देता है। ऐसे ही सलाइवा जो है माउथ में, वहाँ लाइसोजाइम एंजाइम है जो पैथोजेंस को ख़त्म करता है। इसके अलावा टीयर्स जो है इससे भी कुछ चीज़ें निकलती हैं। टीयर्स एबल टू डाइजेस्ट द पेप्टिडोग्लाइकॉन लेयर ऑफ द बैक्टीरियल सेल वॉल। तो ऑल प्रिवेंट माइक्रोबियल ग्रोथ। इसके अलावा सेलुलर बैरियर्स है। सर्टेन टाइप्स ऑफ ल्यूकोसाइट दैट मीन्स WBC of our body like पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट जिसमें न्यूट्रोफिल्स है और मोनोसाइट्स हैं एंड न्यूट्रल किलर टाइप ऑफ लिम्फोसाइट इन द ब्लड एज वेल एज मैक्रोफेजेस इन टिश्यूज कैन फैगोसाइट्स एंड डिस्ट्रॉय माइक्रोज। फैगोसाइटोसिस का मतलब है कोई भी पैथोजेंस बॉडी में गया उस पैथोजेंस को WBC जो है इनहेल करता है। मोस्ट फैगोसाइटोसिस इज कंडक्टेड बाय स्पेशलाइज्ड सेल सच एज ब्लड मोनोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स एंड टिश्यूज मैक्रोफेजेस। फिर साइटोकाइन बैरियर्स है, ये वायरस को ख़त्म करता है। वायरस इन्फेक्टेड सेल्स सीक्रेट ग्लाइकोप्रोटीन्स कॉल्ड इंटरफेरॉन्स which protect non-infected cells in the vicinity from further viral infection. Complement is a group of over 30 serum protein that circulate in an
इनएक्टिव स्टेट। कंप्लीमेंट एक ग्रुप है 30 एमिनो एसिड का या 30 सीरम प्रोटीन का, जो पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट रहता है इनएक्टिव फॉर्म में, और जैसे ही कोई पैथोजेंस आता है यह उसको पहचानता है और पहचान करके उसको डिस्ट्रॉय करता है। अ वैरायटी ऑफ स्पेसिफिक एंड नॉन स्पेसिफिक immunologic mechanism can convert the inactive form of complement protein into an active state. इसके अलावा एक और बैरियर है जिसको इन्फ्लेमेटरी बैरियर्स कहते हैं। आपने देखा होगा कहीं चोट लग जाती है या कहीं घाव हो जाता है तो चारों तरफ स्वेलिंग हो जाती है, इसको इन्फ्लेमेशन कहते हैं। टिश्यूज damage caused by a wound or by an invading pathogenic microorganism include a complex sequence of events collectively known as the inflammatory response. Inflammatory response occur due to release of chemical alarm signal, notably histamine and prostaglandins, by the damaged mast cell. There is an increase in capillary permeability which facilitate an influx of fluid resulting in edema. One of the principal mediators of the inflammatory response is histamine, a chemical released by a variety of cells in response to tissues injury. Another important group of inflammatory mediators include small peptides called kinins, normally present in blood plasma. Active form of complement can damage the membrane of pathogenic organism by producing transmembrane pores which led to their lysis. इसके बाद एक्वायर्ड इम्यूनिटी की जब हम बात करते हैं तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी को हम एडॉप्टिव या स्पेसिफिक इम्यूनिटी कहते हैं। ये बाहर से ली जाती है। इस कैपेबल ऑफ रिकॉग्नाइजिंग and selectively eliminating specific microorganism and molecules. जो स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स हैं वो फॉरेन एंटीजेंस हैं। जब ये शरीर के अंदर पहुंचते हैं तो इसके खिलाफ एंटीबॉडी बनती हैं और वो एंटीबॉडी जो हैं बाद में इन पैथोजेंस को ख़त्म करने का काम करते हैं। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज़ फाउंड ओनली इन वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स के अलावा ये किसी में भी नहीं मिलती हैं, अनवर्टिब्रेट में नहीं मिलेंगी। एक्वायर्ड इम्यून रिस्पॉन्सेस आर रिएक्शन टू स्पेसिफिक एंटीजेंस। इनकी फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स है। एक तो एंटीजेनिक स्पेसिफिसिटी, it permits the immune system to distinguish subtle difference among antigens. बहुत सारे एंटीजेंस बॉडी के अंदर मिलते हैं, लेकिन शरीर जो है ये इम्यून सिस्टम हर एक को पहचानता है। हज़ारों लाखों की संख्या में पैथोजेंस बॉडी के अंदर जा सकते हैं और उनको पहचानने के लिए उतनी ही सेल्स होती हैं। द इम्यून सिस्टम इज़ कैपेबल ऑफ जनरेटिंग tremendous diversity in its recognition molecule, allowing to it recognize billions of uniquely different structure on foreign antigens. Immunologic memory. Once the immune system has recognized and responded to an antigen, it exhibits immunologic memory, that is, second encounter with the same antigen induces a heightened state of immune reactivity. Self and non-self recognition. The immune system normally responds only to foreign antigens, indicating that it is capable of self or non-self recognition. The ability of immune system to distinguish self from non-self and respond only to non-self molecules is essential.
इसके अलावा हमारी बॉडी के अंदर अनेक लिम्फॉइड ऑर्गन्स हैं और प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स को हम बोन मैरो कहते हैं और थाइमस ग्लैंड कहते हैं। जब हम आगे बात करेंगे नेक्स्ट टर्न पर तो वहाँ पर हम बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स की बात करेंगे। बी लिम्फोसाइट जो हैं बोन मैरो में बनती हैं और टी लिम्फोसाइट जो है थाइमस ग्लैंड में बनती हैं। दैट्स ऑल। अगले टर्न पर मिलेंगे, फिर बात करेंगे।